Around 20 students. Till now 12 have joined, waiting for the others to join so that I can start the lecture. As I said, this chapter is very important. Aditi Dev, welcome Aditi. So as I said, this chapter is very important, as in this chapter requires very less amount of hard work. बहुत difficult नहीं, बहुत आसान है, and you get very good marks. मतलब there are 4 to 5 chapters in mathematics where you can score out of marks. So this is one of the chapter and which is easiest of all. So बहुत आसान है. So I think there are 13 students now, waiting for 5 or 6, 14. The number is 14. Write down your names in the comment section, beta. Those who have joined the lecture, please write down your name in the comment section. Now I'm going to start it. So mathematical logic. Now what is mathematical logic? Mathematical logic क्या होता है? Mathematical logic. See, mathematics is a science. Mathematics क्या है? It is a science. और साइंस हमें सिखाता है कि एक्यूरेट रहो, रीजनिंग करो, डोंट बिलीव ऑन assumptions, approximations. आपका जो आंसर आना चाहिए वो रीजन को फॉलो करना चाहिए. और रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिक. सो हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई लॉजिक इन मैथ्स. ठीक है, वी ऑलवेज अप्लाई लॉजिक इन मैथ्स, नो डाउट. हम लोग बिना लॉजिक के मैथ्स सॉल्व नहीं कर सकते, बट हियर वी आर गोइंग टू लर्न मैथमेटिकल लॉजिक. नाउ व्हेन आई इनिशियली स्टार्ट द चैप्टर, यू विल आप सोचोगे कि यार ये लॉजिक, स्टेटमेंट, सेंटेंस, ये सब कहाँ से आ रहे हैं. तो यस, मैं सबसे पहले यहाँ पर जो आई स्टार्ट विद इज अ स्टेटमेंट, बिकॉज स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय लर्निंग मैथमेटिकल लॉजिक. आप बोलोगे ग्रामर सिखा रहे हैं क्या आप? आई से नो, इट्स मैथमेटिक्स. स्टेटमेंट्स. नाउ व्हाट आर स्टेटमेंट्स? देयर आर टू थिंग्स. स्टेटमेंट सेंटेंसेस के अंदर आते हैं. हु इज देयर नाउ? सपना शाह, वेदांत वानखड़े, निशांत, नचिकेत. Welcome all. The number is now, I think, is 19. As I said, that today's number will be more than 20. So today we are going to learn statements. ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ रहे हैं, उसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्टेटमेंट है. So what is a statement? A statement is a declarative sentence. Declarative sentence which is either true or false. ठीक है, ये आपको याद रखना है. बट नॉट, ये भी चीज याद रखो, कंडीशन है ये, बट नॉट बोथ simultaneously. Then I'll write down some sentences just to discuss with you. आप लोगों से डिस्कस करने के लिए I think the board is not visible properly, so थोड़ा सा zoom out करते हैं. Okay, I hope the board is visible. The entire board is visible now. Okay, not both simultaneously. I'll write down some example. First is 2 is prime number. Second is every rectangle is square. Third is the sun rises in the west. Fourth is Mumbai is capital of Maharashtra. Okay, so let us discuss this now. Let us discuss this. Now we are learning mathematical logic, and I said mathematical logic deals with statements. Now what are statements? What are statements? Tanisha, Sahil, Tanish, Sahil, Vasu, Nachiket. Good morning everyone, welcome. So let me again explain you. As I told, mathematical logic deals with statements. Now what is a statement? What is difference between a sentence and a statement? Sentence हम लोग कितने तरह का पता है? We know a sentence which is declarative, जहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं I work in a firm, I study in this classes, my father works with ICICI Bank, I am playing cricket, my mother is cooking food. All these sentences, ये सारे sentences जो होते हैं, these are declarative sentences. When I say what is your name? If I ask you what would you like to drink, if I ask you where do you stay, now all these sentences are
interrogative, because I am asking you something. Now these are interrogative sentences. So I am discussing first of all the types of sentences. You will say you have started with grammar. No, but it is maths right now. So declarative मैंने बताया, फिर मैंने बताया अभी आपको interrogative, जहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, that is interrogative. Third one is imperative. Now imperative is what? Imperative is where we command or request. जहाँ पर हम command करेंगे या फिर request करेंगे कुछ. ठीक है? I think the lower part of the board is not visible. Okay. Anyways, so I was talking about the imperative sentence where we ask, where we give command or we request. Please give me your book. Now this is a kind of request. ठीक है? Please close the door. Now this is a kind of request. ऐसे sentences को हम कहते हैं imperative. Sorry. ठीक है? Declarative, interrogative, imperative, and there is exclamatory sentence. Now what is exclamatory sentence? Exclamatory sentences are those sentences where we exclaim. Aditya, welcome. You are late today. Why? What happened? Oh, sorry. Okay. Now I think the entire board is visible. Okay. Good. Now, as I said, declarative, interrogative, imperative, and the last one is exclamatory. तो ये जो sentences है ना, except this, others are not statements. चलो हम कुछ statements discuss करते हैं. जैसे first one is 2 is prime number. If I am saying 2 is prime number, is it a statement? ये statement है क्या? Yes, it is a statement. Why? देखो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने का कंडीशन समझ लो. ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं either they are true or false. या तो वो ट्रू होंगे या फिर फॉल्स होंगे. ठीक है? अगर मैं कहता हूं द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. देयर इज नो थर्ड ऑप्शन. इफ आई से टुडे इज संडे, अगर मैं कहता हूं टुडे इज संडे, तो अगर आज संडे है तो ये ट्रू है, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स. मतलब मंडे को अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं टुडे इज संडे, सो दैट मींस दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट. ठीक है? दिस इज नॉट ट्रू एक्चुअली. तो जब जहां पे हमको डिसाइड करना मुश्किल होगा कि आज ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, अगर हमने क्लियरली डिसाइड कर लिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, दैट मीन्स इट इज अ स्टेटमेंट. जब हमें कंफ्यूजन होगा, अगर जैसे मैंने कहा कि टुडे इज संडे, अगर ये स्टेटमेंट मैं संडे को बोल रहा हूं, देन इट इज ट्रू. बट व्हाट इफ आई एम सेइंग दिस सेंटेंस ऑन मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे, हम बोलेंगे फॉल्स है. तो जो स्टेटमेंट कभी ट्रू होते हैं कभी फॉल्स होते हैं, जो वेराई होते हैं, दे आर नॉट स्टेटमेंट्स. गॉट इट? व्हाट इफ आई से राम इज गुड बॉय? व्हाट इफ आई से राम इज अ गुड बॉय? तो राम किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा होगा. जो उसके चाहने वाले हैं, दे विल से यस राम इज गुड बॉय, इट इज ट्रू फॉर देम. बट देयर विल बी फ्यू बॉयज और गर्ल्स और सम स्टूडेंट्स जो कहेंगे नो यार, ही इज नॉट अ गुड बॉय. सो जहां पर कोई चीज वेराई होती है, वी आर नॉट एग्जैक्टली कंफर्म whether it is true or false, we say it is not a statement. और जहां पे हम कंफर्म होते हैं कि yes the statement is true और the statement is false, हम बहुत क्लियर रहेंगे. ट्रू है, हाँ ट्रू है. ये फॉल्स है, हाँ फॉल्स है. we call it a statement. अगर मैं ये जब सेंटेंस बोल रहा हूं 2 is a prime number, what do you say? Is it true or false? Is it true or false? I'm waiting in the comment. Come on, कमेंट मुझे बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है पहला स्टेटमेंट. 2 is a prime number. Come on, comment मुझे बताओ. 2 is a prime number. Waiting for your answers, बेटा. Yes, someone write down 2 is a prime number. सही है या गलत है? True. Pranjal being the first, she is telling true. True. Okay, yes, it is right. Prime number वो नंबर होते हैं जो किसी के टेबल नहीं आते, सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं. So this is true. तो जहां पर हम डिसाइड कर पा रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे yes, it is statement. And after that I will write down its truth value is true. इसका truth value भी मुझे लिखना है, ये true है. ठीक है? तो हर एक स्टेटमेंट हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ट्रू है और कि वो स्टेटमेंट है या नहीं है. अगर है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है. तो यहां पर इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन,
एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर, मैंने छोटा सा लिखा, मतलब शॉर्ट में लिखा है, मैं लिख रहा हूं यहां पर स्क्वायर, कि हर रेक्टेंगल स्क्वायर होता है क्या? इमेजिन करो आप, देखो मैं ये कह सकता हूं कि ना हर स्क्वायर जो है ना इट इज रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, ठीक है, ऐसा मैं कह सकता हूं। क्यों? व्हाट इज रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी? रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है कि ऑल साइड्स शुड बी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो स्क्वायर वो प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। बट इफ आई से एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर, तो रेक्टेंगल का एक और प्रॉपर्टी जो स्क्वायर फॉलो नहीं, जो स्क्वायर में नहीं आता, यानी सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होता है, स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या आएगा? दिस इज फॉल्स, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, द सन राइजेस इन द वेस्ट, कमेंट बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, या ये बताओ स्टेटमेंट है या नहीं है। स्टेटमेंट तो है, द सन राइजेस इन द वेस्ट, बिकॉज वी आर एबल टू डिसाइड वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कमेंट बताओ ट्रूथ वैल्यू, यस इट इज ट्रू, करेक्ट। ये जो है पहली बात तो ये स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट वन, the next one I'm writing is Mumbai is capital of Maharashtra. Now are you able to decide whether it is true or false? आप डिसाइड कर पा रहे हो कि यह ट्रू है या फॉल्स है? कमेंट में एक्टिव रहो बेटा, कमेंट में एक्टिव रहो। मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, दिस इज ट्रू स्टेट, दिस इज अ स्टेटमेंट, बट इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? हाँ, मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का कैपिटल है, सो दिस इज ट्रू। तो इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स है, कुछ ट्रू है और कुछ फॉल्स है, यानी 1, 3 और 4 ट्रू है एंड सेकंड वाला इज फॉल्स, बट ऑल ऑफ देम आर अ स्टेटमेंट, गॉट इट। यू कैन कॉपी दिस। Okay, please copy this fast because every time after the lecture I tell you to send these notes on my mobile number, on my WhatsApp number. Okay, so I hope ये आप उसका स्टेटमेंट का डेफिनेशन और ये 4 एग्जाम्पल, प्लीज कॉपी दिस डाउन, बी फास्ट। Your notebook and pen should be in your hand, because sometimes in between also I tell you to send the answer on my mobile. तो आपका WhatsApp एक्टिव होना चाहिए। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इसको हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं, बट आपको ये कॉपी करना है। आई होप यू हैव कॉपीड द डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। Okay, now let us discuss sentences. I'll write this. Now let us discuss sentences. What are sentences? Now I'll write down first some sentences. I will write down first, may God bless you. Second is okay, why are you so unhappy? Why are you so unhappy? Okay, third one is don't ever touch my phone. Fourth one is I hate you. ठीक है, ऐसे ये 4 sentences है यहाँ पर। Now let us discuss these sentences. We are given, may God bless you, why are you so unhappy, don't ever touch my phone, and I hate you. So let us discuss the first sentence. So we are given here, may God bless you. क्या दिया गया हमको एक सेंटेंस दिया गया है, may God bless you. Can you tell me in the comment section what kind of sentence it is? बताओ मुझे। और पहली बात ये बताओ, क्या इसको हम डिसाइड कर पा रहे हैं ट्रू है कि फॉल्स है? पहले मुझे ये बताओ, कमेंट में आप ये बताओगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मे गॉड ब्लेस यू, कमेंट बताओ, आप डिसाइड कर पा रहे हो कि आपको यस और नो में जवाब देना है। अगर आप इसे डिसाइड कर पा रहे हो ट्रू है या फॉल्स है, तो आप यस लिखोगे, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, राइट नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो यस, वी आर नॉट एबल टू डिसाइड ये ट्रू है या फॉल्स है, नहीं कर पा रहे ना, भगवान तुम्हारा भला करे, मे गॉड ब्लेस यू,
ठीक है. So we cannot decide this is true or God की मर्जी भाई. It will vary person to person. So when we are not able to decide whether it is true or false, then it is not a statement, it is a sentence. Now what kind of sentence it is? Since you can see exclamatory mark here, यहाँ पर आपको exclamatory mark दिख रहा है. So therefore it is not a statement. And what kind of sentence it is? It is exclamatory sentence. Okay. Okay. Most of you said no. No. Okay. Aditya, Patel, Pranjal also answered that it is exclamatory. Correct. Now when I talk about the second sentence, why are you so unhappy? ठीक है, हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये ट्रू है फॉल्स है. अब तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो अनहैप्पी क्यों है. So where we cannot decide whether a sentence is true or false, we don't call it a statement. It is not a statement. Then what kind of sentence it is? It is interrogative. ठीक है, सारी चीजें नोट करनी बेटा. Don't ever touch my phone. Now I am telling someone मेरा फोन टच मत करो. अब ये क्या बात हुई? तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ट्रू है या फॉल्स है. वो तो सिर्फ एक सेंटेंस है कि मेरा फोन टच मत करो. यहाँ ट्रू और फॉल्स का कोई सवाल ही नहीं उठता. तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. And this is don't ever touch my phone. So this is a imperative sentence क्योंकि command है यहाँ पर. So I will write down this is a imperative sentence. I hate you. Now this is exclamatory again. मैं decide नहीं कर रहा. I hate you. ये true होगा या false होगा? We cannot decide it. Okay? So I'll write down this is exclamatory. तो याद रखो कभी भी आपको ये तीन टाइप के सेंटेंस दिखेंगे. Exclamatory, interrogative, imperative. ये तीन टाइप के सेंटेंस अगर आपको दिख रहे हैं तो आप समझ जाओ कि वी कैन नॉट डिसाइड इट इज अ ट्रू और फॉल्स. दे आर सेंटेंसेस एंड दे आर नॉट स्टेटमेंट्स. ओके, ये आपको याद रखना. यू कैन कॉपी दिस सेंटेंसेस. Okay, I hope you have copied this. आगे बढ़ते हैं. Now discuss the third type of topic. Third topic हम discuss करते हैं जिसे हम कहते हैं we call it open sentences. Now what is open sentences? Open sentences are the sentences or truth value में vary according to some condition. तो जो अगर मैं एक समझ लो लिखता हूं मैं, if I say rainy season is the best season. ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया. Now this is open sentence. Open sentence हम उसको बोलते हैं ना जिसकी ट्रूथ वैल्यू अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है. मतलब मुझे पसंद है रेनी सीजन, सो आई हैव रिटन रेनी सीजन इज द बेस्ट सीजन. बट फॉर द सेकंड पर्सन, जो अगला आदमी है, उसके लिए शायद रेनी सीजन मे नॉट बी द बेस्ट सीजन. उसको शायद विंटर पसंद हो. एक तीसरा आदमी हो जिसको समर पसंद हो. तो जिस स्टेटमेंट में कंफ्यूजन होगा एंड वी हैव मोर देन वन ऑप्शन, तो वी कॉल इट ओपन सेंटेंस. अलग अलग आदमी के लिए इसका जो ट्रूथ वैल्यू रहेगा वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आएगा. एक एग्जांपल मैं और लिखता हूं. फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग x plus 4 is equal to 8. Now this is again open statement. Why? Because जितना आप x का वैल्यू चेंज करोगे उतने अलग अलग वैल्यूज आएंगे. So it is not true for all the value of x. अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूं तो 1 plus 4 is equal to 8. No. अगर यहां पर दिया होता 4 plus 4 equal to 8, अगर उसे प्रॉपर 4 लिखा होता ना यहाँ पर इस जगह पे, तो I may have said yes it is true 4 plus 4 is 8. बट अभी x का वैल्यू will keep on changing. आप x का कितना वैल्यू डाल सकते हैं? आपने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, 6 डाला, जो भी आप वैल्यू डालोगे आप x का, उतने अलग अलग वैल्यूज विल बी इक्वल. राइट हैंड साइड पे आप उतने अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे. सो दिस स्टेटमेंट वेराइज अकॉर्डिंग टू कंडीशन. सो आई विल राइट डाउन दिस इज ओपन स्टेटमेंट. ठीक है, ओपन स्टेटमेंट सेंटेंसेस, ये भी ओपन सेंटेंसेस है. ठीक है. थर्ड एक लिखता हूं मैं, जैसे अभी थोड़े पहले मैंने डिस्कस किया था कि सपोज में, अच्छा ये नहीं दिखा, कैलकाटा इज अ गुड सिटी. नाउ दिस इज अगेन एन ओपिनियन. एक ओपिनियन है, और ओपिनियन जो होता है वो हर एक के लिए सेम नहीं होता.
some may think that Calcutta is a good city, but some may not, because उनका experience अच्छा नहीं रहा होगा. So जहाँ पर we cannot decide, और जहाँ पे दोनों की संभावनाएं होती है, दोनों का चांसेस होता है, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, अलग अलग लोगों के लिए वेराई कर रहा है ट्रूथ वैल्यू, तो वी कॉल इट ओपन सेंटेंसेस. ओके, प्लीज कॉपी दिस सेंटेंसेस. हम आगे बढ़ते हैं. Okay, I hope you have copied this. 15 sentences there. Now something more interesting is coming. कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपके सामने आने वाली. मैं कुछ sentences लिख रहा हूँ. So I am writing down first one. A triangle has n sides. ठीक है. 2. You are amazing. ठीक है. 3. Please grant me a leave. Please grant me a leave. आप लोग सोचते रहो मन में यार. If you want, you can write down this sentence along with me so that we'll discuss it later on. Square root of -4 is an irrational number. 5th one, x square minus 6x plus 8 is equal to 0 implies x is equal to -4 or x is equal to -2. 6th one, he is an actor. Now 7th, have a cup of cappuccino. ठीक है. Now 8th one is x plus y the whole square is equal to x square plus 2xy plus y square for all xy belongs to real number. ठीक है. That's it. और एक लिख देता हूँ मैं. 9th one, 1 factorial is equal to 0 and 10th one, 3 plus 5 is less than 11. Now the ball lies in your court now. Now I am asking you to write down the answer from 1 to 10 whether how many of them are sentence statements. ये आपको पता लगाना है. इसका क्वेश्चन क्या है? They are asking us state which sentences are statement, write the truth value. तो आपको ये नहीं बताना है इसमें से स्टेटमेंट्स कौन से हैं और उनके ट्रूथ वैल्यू, मतलब वो सच है या झूठ है. स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं जहां पर हम डिसाइड कर पाते हैं कि वो ट्रू और फॉल्स है. तो अगर आप डिसाइड कर पा रहे हो ट्रू है या फॉल्स है तो आप लिखोगे यस इट इज अ स्टेटमेंट. और अगर ये स्टेटमेंट है तो वो ट्रू है या फॉल्स है. अगर ट्रू है तो आपको लिखना है द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. अगर फॉल्स है तो आपको लिखना है द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स. ओके, स्टार्ट राइटिंग दिस नाउ. Start with it. After you write down, I'll discuss with you. Now the first statement, can you decide the whether it is true or false? Triangle has n sides. So n side मतलब n will vary ना.
n का कोई भी वैल्यू आ सकता है, तो इट इज एन ओपन स्टेटमेंट. वी कैन नॉट डिसाइड वेदर a हैज n साइड्स और नॉट. हम डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे. अगर उसने कहा होता कि अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, देन द स्टेटमेंट वुड हैव बीन ट्रू और फॉल्स. अगर वो कहता था कि ट्रायंगल हैज 4 साइड, तो वो फॉल्स. अगर उसने कहा होता अ ट्रायंगल हैज 3 साइड, आई मे हैव सेड इट इज ट्रू. तो इसका ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करता था इफ वी हैड सम known number here, but the number of side that is given is unknown, so we are not able to decide, so it is not a statement. Not a statement, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, उसका ट्रूथ वैल्यू आएगा ही नहीं. Coming to second one, you are amazing. आप अमेजिंग हो, ये ट्रू है क्या फॉल्स है? तो यहाँ पे वेराई होगा. ठीक है, you are amazing, this may be true or false. We cannot decide, one person cannot give his opinion, so this is also not an statement. Please grant me a leave. Now this is a sentence, not a statement. What kind of sentence it is? It is an imperative sentence, जहां पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं. So what is imperative sentence? जहां पे हम लोग रिक्वेस्ट या कमांड करते हैं. Now he is telling that root minus root 4, root square root of minus 4 is an irrational number. Now the number inside, अभी यहाँ पर देखोगे ना तो ये इमेजिनरी हो जाएगा. हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है ना, तो -1 into 4, we can take out square root of 4, that is 2, but यहाँ पर क्या आएगा? minus root of -1, so this becomes 2i. I is an imaginary number, so this is a statement and it is true. This is an imaginary number और ये एक स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? आप लिखना दिस ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. ठीक है. कमिंग टू द फिफ्थ वन. आपको फोर्थ में डाउट है क्या? अगर है तो कमेंट में लिखो. आप प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट इफ यू हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन व्हाट एवर आई हैव सॉल्व्ड. ओके, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग, वेरी गुड. ओके बेटा, तो अभी आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे. फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे. ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? वो कह रहा है कि x square minus 6x plus 8 implies that x is equal to -4 and x is equal to -√2. तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x square minus 6x plus 8 is equal to 0. I hope you are able to see this. Now, what will happen? रुको, मैं मेरे स्क्रीन में देखता हूँ आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो. Just a second, let me check in my screen. Yes, it is visible. So हम लोग क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग 10 तक हमने सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या करते हैं? लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए और जो मिडिल टर्म है वो दो पार्ट में स्प्लिट होना चाहिए. अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो ऐड होने पे, और अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस होने पे. सो व्हाट आर द टू नंबर्स बाय मल्टीप्लाइंग व्हिच आई गेट 8 एंड बाय एडिंग आई वुड गेट 6. तो द नंबर्स आर 4 and 2. सी 4 2s are 8. दोनों को माइनस लेते हैं हम, साइन भी इंपॉर्टेंट है. 4 2s are 8. ठीक है, और -4 and -2 sums up to -6. गॉट इट बेटा? समझ में आया? तो हम यहां पर लिखेंगे x square minus 4x minus 2x plus 8 is equal to 0. Then we take out common. कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x minus 4. दूसरा आएगा, यहां से मैंने 2 बाहर निकाला तो x minus 4 is equal to 0. That can be written as x minus 2 and x minus 4 is equal to 0. तो x is equal to, अगर मैंने पहले तो मैं ऐसा लिखूंगा x minus 2 is equal to 0, then x minus 4 is equal to 0. तो -2 को अपोजिट में लिया तो +2, 4 को अपोजिट में लिया तो +4. इसका वैल्यूज तो राइट है बट जो साइन है उसका वो अलग है. So that is a statement, but is it true or false? Because I am getting x is equal to 2 and x is equal to 4, और यहाँ पर क्या दिया गया है? x is equal to -4 and x is equal to -2. So it is a statement, but it's जो वो imply कर रहा है x is equal to -4 and x is equal to -2, that is false. I'll write down this statement is a false statement. Please copy this down. ठीक है? अच्छा, आगे का डिस्कस करते फिर आप कॉपी करो. मैं ऐसे ही लिख के छोड़ूंगा यहाँ पर. आपको चाहिए तो आप इसके नीचे प्रॉपर सॉल्व करना है. लिमिटेड स्पेस, so I am solving like this. ओके बेटा, ही इज एन एक्टर. तो ये स्टेटमेंट अगर मैं कहता हूं ही इज एन एक्टर, तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू हो सकता है. वो एक्टर है, तो इसमें क्या होगा? या तो होगा या तो नहीं होगा. ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. तो दिस इज एन स्टेटमेंट, बट हम लोग डिसाइड एग्जैक्टली नहीं कर पा रहे, परफेक्टली नहीं कर पा रहे, बट हमको कंफ्यूजन है ना, ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, सो दिस इज एन ओपन स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट दिस हैव ए कप ऑफ कैपुचिनो. अभी ये क्या है? इट इज एन, ये फर्स्ट वाला टाइप का सेंटेंस है. नाउ वी कैन नॉट डिसाइड इट इज ट्रू और फॉल्स.
तो हम इसको लिखेंगे सेंटेंस। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है ये? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट वाला, जहां पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अभी थर्ड एट वाला देखो, अभी यहां पर हमको दिया गया है x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वो कह रहा है x और y आर रियल नंबर्स। आई एग्री टू दिस। व्हाई? क्योंकि तुमको पता है ना, आपको ये फॉर्मूला याद है क्या? a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसको जो इक्विवेलेंट आ रहा है दैट इज ट्रू। अगर हम लोग x को a समझते हैं और y को b समझते हैं तो a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट? तो ये स्टेटमेंट जो है दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज ट्रू स्टेटमेंट। तो मैं यहां पर लिखूंगा इट इज ट्रू स्टेटमेंट। अभी यहां पर आपको दिख रहा है मैंने क्या लिखा है? डोंट थिंक मैंने लिखा है कि 11 इज इक्वल टू 0। इट इज नॉट 11, इट इज 1 फैक्टोरियल। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है व्हाट इज फैक्टोरियल। सो इट इज 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 0। तो किसको याद है 1 का फैक्टोरियल क्या आ रहा था? किसको याद है कि 1 का फैक्टोरियल क्या आ रहा था? कौन बताएगा? इट इज ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स? जस्ट टेल मी दैट। आई विल वेट फॉर योर आंसर। आपको याद करना है और मुझे बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वाटर प्लीज, पानी दे दो। किसी ने लिखा? वन फैक्टोरियल 0 को इक्वल है। इट इज फॉल्स। वेदांत कह रहा है, तनीषा कह रहा है फॉल्स। फॉल्स, ओके, यू आर राइट। 1 फैक्टोरियल इज नॉट 1 0। तो 1 फैक्टोरियल इज, आई कैन राइट डाउन 1। सो 1 फैक्टोरियल इज 0, दिस इज अ फॉल्स। इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, ठीक है, लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी उसके बाद जो मुझे दिया गया, मैं यहां पर लिखता हूं 3 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 11। पॉसिबल है क्या? 3 प्लस 5 क्या होता है? 8। मैं ऊपर लिखता हूं 3 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 11 कह रहा है वो, बट 3 प्लस 5 क्या होता है? 8। इज 8 ग्रेटर देन 11? नो। तो दिस इज अ स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट है, बट ये कौन सा स्टेटमेंट है? इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। प्लीज कॉपी दिस डाउन। सॉल्यूशन मैंने साइड में सॉल्व किए है, आपको उसको लिखना है, कॉपी करना है। प्लीज कॉपी दिस डाउन। Yes, someone has written 1 factorial is 1. That is correct. Shubham Chavan. Very good. Please copy this. After this we are going to learn very important topics, that is connectives, mathematical connectives. I hope you have understood all the solutions. Can you please let me know if you have understood. Please hit like अगर आपको समझा है तो hit like, और frown अगर नहीं समझ में आया तो frown का इमोजी भेजो आप, send us. Hit like और hit sad emoji. I'll come to know. Okay. Jagrat is saying she has understood. Very good बेटा. कोई भी नहीं समझ में आएगा? तनीश, yes.
Okay, Pranjal is saying understood. Jagruti, yes, thanks for all these likes. Okay beta, now let me start with another important topic that just now I told you that we are going to study another important as well as interesting topic. सारा मैथमेटिकल लॉजिक अब इसके ऊपर डिपेंड करता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं. तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं कनेक्टिव्स. मुझे पता है आपने ऐसे ये चैप्टर पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ है. Never in the history, not in first, second, third, fourth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, and this is 12th. This is the first time you are learning mathematical logic, and I'm happy that you are answering it very quickly. So अब हम पढ़ेंगे connectives. We are going to learn now connectives. मैं आपको बता दूं mathematical connectives 4 टाइप के होते हैं. But before I teach you or I will explain you what are these 4 connectives, I am going to write down few sentences और उस sentence को समझ के हम समझेंगे connectives क्या होता है. So just a second, let me find out some sentences for you so that I can write down it on the board. So the questions are, the sentences are: 1. Monsoon is very good this year and the rivers are rising. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस. सेकेंड, स्नेहा is fat or unhappy. Then I'll write down third one, if it rains then the schools will be closed. That is school, not schools. Okay, the fourth one, if you can write down along with me that would be good, because फिर आपको solve करने के लिए या फिर आगे आंसर लिखने के लिए आसान हो जाएगा. You will require less time. A triangle is equilateral if and only if it is equiangular. Just a second. Equiangular. Got it बेटा? चलो ये 4 सेंटेंस हम डिस्कस करते हैं अभी. We are going to discuss these 4 sentences. But before I start discussing these questions, I would like to mark some. मुझे कुछ चीजें मार्क करनी पड़ेगी यहाँ पर, जैसे and, जैसे और, जैसे if then, जैसे if and only if. Now you have, these are the 4 connectives. Now connectives का मतलब होता है जहां पर हम लोग कुछ वर्ड्स को यूज करके 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं. Now this sentence is connected by this sentence using and. इस सेंटेंस को इससे कनेक्ट किया मैंने यूजिंग और. It rains, the school will be closed. I have like joined this sentence using if and then. और यहाँ पर a triangle is equilateral, ये एक सेंटेंस है. It is equiangular, ये दूसरा सेंटेंस है. और मैंने उसको ज्वाइन किया है if and only if से. ठीक है. Now what? जहां पर अभी यहाँ पर देखो, मॉनसून इज गुड दिस ईयर एंड द रिवर्स आर राइजिंग. अगर आप इसको समझना चाहोगे तो आपको मालूम पड़ेगा दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं. जब भी हम कनेक्टिव एक्स एंड लिखते हैं ना, एंड इज ए कंजंक्शन. एंड क्या होता है, सबके डबल डबल नाम है. इसको हम लोग एंड बोलते हैं और इसको हम लोग कंजंक्शन भी बोलते हैं. कंजंक्शन, ठीक है. एंड और कंजंक्शन. और इसका जो सिंबल होता है ना, दैट इज ए विदाउट दैट मिडल लाइन. इसका ये सिंबल है एंड का. ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट दिस. स्नेहा इज फैट और अनहैप्पी. जब मैं और कहता हूं ना तो दोनों में से कोई एक ही एग्जिस्ट करेगा. एंड में क्या होता है, दोनों एग्जिस्ट करता है. यू अंडरस्टूड. अगर मैं कह रहा हूं कि मॉनसून बहुत अच्छा इस साल और रिवर्स राइज हो रहे हैं, तो दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है. बारिश भी अच्छा है और रिवर भी राइज कर रहा है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेगा. वी कॉल इट एंड कनेक्टेड. ठीक है. और जब मैं बोलूंगा स्नेहा इज फैट और अनहैप्पी, जब मैं कहूंगा स्नेहा फैट है या तो वो अनहैप्पी है, तो दोनों में से कोई एक ही एग्जिस्ट कर रहा है. या तो वो फैट है या तो वो अनहैप्पी है. तो इसको हम कहते हैं और कनेक्टिव.
और हम कैसे लिख दिखाते हैं, V, like V, and we show like this, okay, and or we show like this. Now or is known as disjunction, we call it disjunction, ठीक है, इसको याद रखो आप। तो मैंने क्या बताया, एंड में दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेगा और में क्या होगा, दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट करेगा। नाउ कमिंग टू दिस, इफ इट रेन्स देन द स्कूल विल बी क्लोज्ड। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडीशनल, मतलब अगर बारिश होगी तो स्कूल बंद रहेगा, मतलब एक सेंटेंस के ऊपर दूसरा सेंटेंस डिपेंड करता है। तो ये जो इफ देन होता है ना, इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूं, इफ देन को लिखते हैं हम लोग, हम इसका जो सिंबल है इट इज वन साइडेड एरो। क्या है ये, इट इज वन साइडेड एरो, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं इम्प्लीकेशन। क्या लिखते हैं इसको हम, इम्प्लीकेशन, याद रखो इसको, ठीक है। और इफ देन इसका शॉर्टकट है, इफ देन अगर आपको दिखेगा यू अंडरस्टैंड दैट इट इज इम्प्लीकेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन साइडेड एरो। नाउ कमिंग टू दिस, इसको बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन। जहां पर आपको दिखेगा ना इफ एंड ओनली इफ, शॉर्टकट में ना इफ एंड ओनली इफ इज रिटन लाइक दिस, IFF, इफ एंड ओनली इफ। तो अगर आपको इफ एंड ओनली इफ दिख रहा है तो इसका मतलब है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है यहाँ पर कि एक ट्राइंगल इक्विलेटर तब ही होगा जब वो इक्विएंगुलर हो। यहां पर वो इंप्लाई कर रहा है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, बट इतना स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, अ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल इफ एंड ओनली इफ, अगर ऐसा हुआ तो ही, कैसा, इफ इट इज इक्विएंगुलर। तो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ कंडीशन। तो इसका इफ एंड ओनली इफ का साइन कैसा है, डबल साइडेड एरो। क्यों डबल साइडेड है, कि हम लोग दोनों कंडीशन बना सकते हैं। मैंने यहां पर क्या लिखा है, अ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, और यहां पर क्या लिखा है, इट इज इक्विएंगुलर। मैं इसको एक्सचेंज भी कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि इट इज ए ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विलैटरल। गॉट इट। सो इसका जो सिंबल है वो ये है, डबल साइडेड एरो। इसको हम कहते हैं डबल इंप्लीकेशन। क्या कहते हैं, डबल इंप्लीकेशन, ठीक है, आप इसको याद रखो। और इसको हम कंडीशनल भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है यहाँ पर। जो इंप्लीकेशन है उसको हम कंडीशनल कहते हैं, कंडीशनर नहीं, बाल वाला कंडीशनर नहीं, कंडीशनल, आई मीन लाइक दिस, CONDITIONAL, कंडीशनल, ठीक है। और कंडीशनल ऊपर वाले को कहते हैं इफ देन को, और इफ एंड ओनली इफ को हम कहते हैं बाय कंडीशनल, मतलब दो कंडीशनल, दोनों साइड एरो है ना, तो वी कॉल इट बाय कंडीशनल। गॉट इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द फोर कनेक्टिव्स। मैं फिर से इसको समझाता हूं। जो पहला वाला स्टेटमेंट है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एंड कनेक्टिव। एंड कनेक्टिव वो कनेक्टिव होता है जहां पर दो सेंटेंसेस होते हैं और दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। वी रिप्रेजेंट इट बाय एंड एंड इज लाइक दिस, गॉट इट, आई मीन लाइक दिस। और इज लाइक दिस, जहां पे दोनों में से एक एग्जिस्ट करेगा। और को हम लोग डिसजंक्शन भी बोलते हैं। वो लोग तुमको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में और को लोग डिसजंक्शन भी बोल सकते हैं। देन कमिंग टू दिस इंप्लीकेशन, जहां पर इफ और देन आएगा, डोंट गो फॉर अ सेकंड थॉट। इफ और देन आया मतलब वो क्या है, इट इज इंप्लीकेशन और कंडीशनल जिसको बोलते हैं वो स्टेटमेंट है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वन साइडेड एरो से। ओके, व्हेन आई कम टू द लास्ट वन, जहां पर इफ एंड ओनली इफ आएगा, यानी ये बहुत, इट इज ऑल्सो कंडीशन बट बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इक्विएंगुलर। तो इसका जो सिंबल इट इज दो साइड का एरो, दोनों साइड एरो जा रहा है। इसको हम डबल इंप्लीकेशन भी बोलते हैं, बाय कंडीशनल भी बोलते हैं। सो यू विल प्लीज राइट डाउन दिस। जो मैंने चीजें ब्लू पेन से लिखी, आप चाहिए तो ये स्टेट सेंटेंस लिखो, उसके नीचे ये ब्लू वाला लिखो, ये सेंटेंस लिखो, उसके नीचे ये ब्लू वाला पार्ट लिखो। सो लाइक दिस यू कैन कॉपी दिस, प्लीज कॉपी करो इसको। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अक्षत, yes, V, he is showing V. I hope you have understood. So these likes for you guys. Now we will study the, okay, Jagratu is saying she have understood. निशांत बोल रहा है कि वो भी समझ गया है, उसे भी समझ में आ गया है। वेरी गुड। तनीषा सावंत अंडरस्टूड। तनीश झुंझरे, बालाजी झुंझरे,
I mean, I think it is his father's account. ओके, प्रांजल को भी समझ में आ गया है। ओके बेटा, आपने कॉपी कर लिया शायद, तब आगे मूव करते हैं अभी हम। नाउ वी विल स्टडी दिस कनेक्टिव्स इन टैबुलर फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं सिखाऊंगा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चीजें जो आप सीखोगे अभी, दैट विल बी यूज्ड थ्रू आउट द चैप्टर। अभी मैं 4 टेबल बनाऊंगा मैं आपको, किसका किसका, एंड का, और का, इफ देन का, और इफ एंड ओनली इफ का, जिसको हम बोलते हैं कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन एंड डबल इंप्लीकेशन, एंड और कंडीशनल और बाय कंडीशनल बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, आई होप यू हैव कॉपीड दिस, आई एम रबिंग दिस। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले वो भी हम सीख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट नेगेशंस। Now there is another topic, important topic, which we call as negations. This is very important. Negations बहुत important होता है, ये negation का सिंबल है। अगर मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखता हूँ कि Washington is capital of USA, is it? देखो अभी यहाँ पर क्या एक स्टेटमेंट है, ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ठीक है। इट इज फॉल्स, आई नो, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ मुझे इसका नेगेशन लिखना है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, वॉशिंगटन इज नॉट द कैपिटल ऑफ यूएसए। गॉट इट बेटा? तो मैं क्या लिख दूंगा वहां पर, वॉशिंगटन इज नॉट द कैपिटल ऑफ यूएसए, मतलब सीधा उल्टा लिखना होता है, नॉट लाके उसको उल्टा कर दो, इसको हम नेगेशन बोलते हैं। अगर मैं कहूंगा कि इफ आई से Varun Dhawan is the best actor in Bollywood, so इसका आप नेगेशन क्या लिखोगे, वरुण धवन इज द बेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड। आप इसका नेगेशन क्या लिखोगे, हर्ष, शुभम, एवरीवन इज सेइंग they have understood। चलो मुझे बताओ, वरुण धवन इज द बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, आप क्या लिखोगे, वरुण धवन इज नॉट द बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। ये इसका निगेशन हो गया, सिर्फ उल्टा लिखना होता है। सपोज मैंने लिखा पी, तो पी का निगेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसा सोया हुआ एस, उल्टा एस, निगेशन ऑफ पी। पी का निगेशन जो होता है वो इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। सो डू रिमेंबर दिस इफ यू वांट टू कॉपी दिस, और सिर्फ दिमाग में रखेंगे तो भी चलेगा। अब हम स्टार्ट करेंगे टेबल्स, विल स्टार्ट विद द टैबुलर। ओनली 20 स्टूडेंट देयर, वेयर आर अदर्स? 3 स्टूडेंट्स गायब। आई विल टेक द अटेंडेंस, और यू हैव टू सेंड द नोट्स आल्सो। अगर कोई स्किप कर रहा है ना लेक्चर्स, आई डेफिनेटली आई विल आस्क फॉर द नोट्स। 2 स्टूडेंट्स स्टिल स्किपिंग, हैव स्किप्ड देयर क्लास आई थिंक। ओके, आई विल रब दिस नाउ। जो टेबल्स में बनाऊंगा अभी मैं, ये जो एंड और इफ देन और इफ एंड ओनली इफ है, आई विल मेक टेबल्स ऑफ दिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। नाउ सी, सबसे पहला टेबल जो आएगा वो आएगा एंड का। एंड इज रिटन लाइक दिस, ठीक है, एंड इज रिटन लाइक दिस। ओके, शुभम ने लिखा है वरुण धवन इज नॉट द बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। यस, एग्जैक्टली बेटा, इट इज राइट। So still 21 students, I'll check who's not there. 23 students है, अभी 21 ही बच गए। Okay, now I'll draw the table of and। मुझे लगता है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे और जगह है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा। I was waiting for that and, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका जो टेबल बनता है बेटा, अगर मैं सिर्फ 2 ही यूनिट्स ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग P and Q ओनली, सपोज दिस इज P, दिस इज Q, और इसका आंसर यहाँ पर आएगा, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज P and Q। ऐसे हम टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, अगर मैं दो यूनिट्स यूज कर रहा हूँ ना, तो फॉर्मूला क्या है, 2n। 2 तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन मैं कितने यूनिट्स यूज कर रहा हूँ, 2 ना, तो 2 का स्क्वायर इज 4। तो मुझे नीचे जो ट्रू और फॉल्स आएंगे ना, वो 4 आएंगे। जैसे यहाँ पर कैसे आता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। Q का क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हम लोग जब 4 का बनाएंगे ना, 4 रोज का बनाएंगे ना टेबल,
तो हमेशा पहले कैसे आएगा, फर्स्ट दो ट्रू, सेकेंड टू फॉल्स, और सेकेंड वाले का क्यू का कैसे आएगा, ट्रू फॉल्स, याद रखो आप. दिस इज अ बेसिक अरेंजमेंट, दैट्स हाउ वी राइट डाउन द नंबर्स, द ट्रूथ वैल्यूज. पी में हमेशा क्या आता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. क्यू में हमेशा क्या आता है, ट्रू फॉल्स. ये सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है. और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर ये 2 यूनिट वाला है तो टोटल 4 रोज आएंगे, 1 2 3 4, और पहले 2 ट्रू, सेकेंड 2 फॉल्स पी में, और क्यू में ट्रू फॉल्स ऐसे आते हैं. अगर सपोज मैंने 3 यूनिट्स यूज किया, यानी पी क्यू और आर, अगर मैं 3 यूनिट्स यूज किया मैंने, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2, और उसका पावर क्या आ जाएगा 3, तो 2 3 जा 8. तो अभी ये कितना बनेगा, 8 का बनेगा, जैसे समझ के लो खाली. अगर ये 8 का बनेगा ना, तो यहां पर आएगा P, यहां पर आएगा Q, यहां पर आएगा R, और यहां पे आएगा एंड, जैसा लेना रहेगा, अगर P एंड Q का लेना है या P एंड R का लेना है तो वो. तो इसको कैसे लेते हैं, यहाँ पर 8 आने चाहिए ना, तो अभी ये ट्रू कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, ट्रू 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 फॉल्स. समझ में आया. और Q जो है वो P का रोल ले लेगा, यानी ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, और R जो हो जाएगा वो Q का रोल ले लेगा, यानी ट्रू फॉल्स. याद रखो आप, ये समझ में आया. अगर 4 रोज का हम बना रहे हैं तो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, और क्यू कैसे आएगा, ट्रू फॉल्स. अगर हम 3 का बना रहे हैं, 3 यूनिट का, यानी पी क्यू और आर का, तो ये 8 रोज आ जाएंगे. इसमें 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और आर कैसे आएगा, ट्रू फॉल्स. ये आपको याद रखना है, हम लोग बहुत बार डिस्कस करेंगे. दिस इज नॉट द लास्ट टाइम, यू विल कीप ऑन डिस्कसिंग दिस. So before I start, I would request you to write down your names in the. Okay. So अब देखो, किसी ने लिखा है didn't understood sir. Okay, I'll explain it again. तो देखो कैसा होता है ना, आप ये भी भूल जाओ, ये फॉर्मूला भी भूल जाओ. आपको मैं ना बहुत बेसिकली सिखा देता हूं मैं, कि जब हम ना 2 यूनिट यूज करते हैं, यानी मैं 2 स्टेटमेंट्स यूज कर रहा हूं, P और Q. अगर मुझे 2 स्टेटमेंट का टेबल बनाना है ना, अभी आप 3 के ऊपर ध्यान मत दो, सिर्फ 2 स्टेटमेंट का ध्यान दो. अगर मेरे पास 2 स्टेटमेंट है और मुझे ऐड में उसका ट्रू वैल्यू निकालना है, तो हमेशा मैं क्या करूंगा, जो P स्टेटमेंट रहेगा ना, उसका वैल्यू 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स, ये लिखना ही पड़ता है. मतलब डोंट, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बट दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड. और जो Q वाला टर्म है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड ट्रू फॉल्स. ऐसा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. P इज रिप्रेजेंटेड एज ट्रू एंड फॉल्स. Q इज रिप्रेजेंटेड ऑल्टरनेटिवली ट्रू एंड फॉल्स. इसको याद रखो आप. नाउ एंड का एक फॉर्मूला है. एंड का फॉर्मूला है व्हेन P एंड Q बोथ आर ट्रू. व्हेन P और Q दोनों ट्रू रहेगा ना, देन P एंड Q का वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा. समझ में आया क्या, मैं समझाता हूं आपको. ये टेबल देखो आप, इसमें कहां पे आपको ऐसा दिख रहा है जहां पे आपको, यस श्रेया, इट्स लाइक बाइनरी कोडिंग. यस करेक्ट श्रेया, सही बोल रहे हो आप, ये बाइनरी कोडिंग जैसा ही होता है. आगे हम जब पढ़ेंगे तो इट इज लाइक बाइनरी कोडिंग दैट वी हैव स्टडीड इन कंप्यूटर साइंस. तो अभी यहां पर देखो, व्हेन P एंड Q बोथ आर ट्रू, तो मैं लिखूंगा P एंड Q इज ट्रू, यानी उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू. तो अगर आप इस टेबल में देखोगे, कहां पर, किस कॉलम, किस रो में P एंड Q दोनों भी ट्रू आ रहा है, तो यहां पर एक ही ऐसा कॉलम है जहां पर P और Q दोनों भी ट्रू आ रहा है. तो वो क्या है, ये. तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू. और बाकी सब फॉल्स. यहां पर बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी आती है, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे ही मैं चारों टेबल बना दूंगा ना, आपकी सारी डिफिकल्टी दूर. तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और समझने की कोशिश करो. पहली बात तो दिमाग में आपको क्या रखना है, सबसे पहले ये रखना है कि अगर मैं 2 स्टेटमेंट ले रहा हूं P और Q, तो उसके ट्रूथ वैल्यूज 4 आते हैं. ठीक है, कितने आते हैं, 4. तो जिसमें P के जो होते हैं ना, फर्स्ट 2 वैल्यूज ट्रू होते हैं और लास्ट 2 वैल्यूज फॉल्स होते हैं. इसको ध्यान में रख लो, एकदम ज्यादा मत सोचो. सिर्फ ये याद रखो, अगर मैं 2 स्टेटमेंट्स ले रहा हूं P और Q, तो 2 अगर स्टेटमेंट ले रहा हूं, इसमें 4 कॉलम्स आएंगे, और 4 कॉलम में से P के 2 स्टार्टिंग के वैल्यू ट्रू होंगे और लास्ट के 2 वैल्यूज फॉल्स होंगे. और Q के जो स्टेटमेंट है, उसके जो वैल्यूज होंगे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स. यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर ऑल द टेबल्स. चलो मैं दूसरा बनाता हूं. मैं और का जो सिंबल होता है वो V होता है, ऐसे होता है. ठीक है, नाउ लेट मी ड्रॉ दिस. मैं 2 ही यहां पर स्टेटमेंट लूंगा. 2 स्टेटमेंट हैं
एक है P, दूसरा है Q, दूसरा है P और Q, याद रखो आगे। तो जैसा कि मैंने बताया 1 2 3 4, पहला दो ट्रू, दूसरा दो फॉल्स। पहले दो ट्रू हमेशा ही सेम रहेगा, फर्स्ट दोनों जो रहेंगे वो ट्रू रहेंगे और सेकंड के दो फॉल्स रहेंगे। Q में ट्रू फॉल्स। लेकिन और का जो नियम है वो अलग है। एंड का नियम क्या था, अगर दोनों ट्रू रहेंगे तो उसका वैल्यू ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। तो ऐसा मुझे एक ही स्टेटमेंट मिला था, ट्रू तो ये ट्रू आया, बाकी कहीं पे दोनों ट्रू नहीं है तो बाकी सारे क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। लेकिन अभी और का नियम क्या है, और का रूल क्या है, और सेज व्हेन, ये अलग है, व्हेन बोथ P and Q have ट्रूथ वैल्यूज F, अगर दोनों का फॉल्स रहेगा therefore P और Q जो उनका और का वैल्यू रहेगा that will be false। मतलब एंड का एग्जैक्टली उल्टा है। एंड में क्या था, अगर दोनों ट्रू है वैल्यू P और Q का तो उसका आंसर ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स। यहां पर क्या है, और में अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स है तो उसका आंसर फॉल्स आएगा और बाकी सब ट्रू। एकदम उल्टा हो गया ना। एंड क्या बोलता है, अगर P और Q दोनों का वैल्यू ट्रू आया तो उसका ट्रूथ वैल्यू आएगा ट्रू और बाकी सब फॉल्स। और उसका उल्टा बोलता है, और क्या बोलता है, अगर P और Q दोनों का वैल्यू फॉल्स आया तो फॉल्स, तो बाकी सब क्या है, तीसरा कुछ ऑप्शन है हमारे पास ट्रू और फॉल्स के सिवा, नहीं, तो बाकी सब क्या आएगा, ट्रू आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टू टेबल्स। ठीक है, आगे आते हैं। नहीं समझा तो मैं फिर समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कमिंग टू इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं इफ देन, जो रिप्रेजेंट होता है एरो से, इसको हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। इसका टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, नाउ दिस इज 1 2 3 4, ये है P, ये है Q, ये है P implies to Q। तो जैसा कि मैंने कहा ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, ऐसा आ गया। बहुत ध्यान से देखना है आपको, 22 बच्चे अभी इस वक्त अटेंड कर रहे हैं, एक गायब है। तो यहां पर देखो इसका रूल क्या है, तो मैं इसका रूल लिखता हूं, when truth value of P is true and of Q is F, then P implies to Q is false। इसका रूल क्या मालूम है क्या, पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला अगर फॉल्स रहेगा तो उसका जो आंसर आता है मुझे दैट विल बी फॉल्स। यानी ऐसा देखो कहां पर है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। तो इसका नियम क्या है, अगर P का वैल्यू ट्रू है, Q का वैल्यू फॉल्स है, तो P implies to Q will be false। तो ऐसा कहां पर सिर्फ एक ही है, सेकंड वाला, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आंसर इज फॉल्स। तो बाकी सब क्या होंगे, तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास ट्रू, तीसरा ऑप्शन तो कुछ है नहीं, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। सी एक्सप्रेस योरसेल्फ, आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, फिर बताता हूं मैं। एंड का आप हमेशा से, ये पहले तो इसके दो कॉलम्स याद रख लो, P और Q। आप तीनों में देखो, तीनों में P और Q देखो, सारे के सारे सेम है या नहीं है, पहले मुझे ये बताओ, यस और नो, ये सेम है क्या, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये सेम है या नहीं, यस और नो। यस, हर्ष इज सेइंग यस, यस करेक्ट, सेम है ना। तो इसका मतलब आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। डिपेंड क्या है, अभी आपका वेराई क्या कर रहा है, कनेक्टिव वेराई कर रहा है। यहां पर एंड है तो एंड का रूल क्या है, दोनों ट्रू तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और का रूल क्या है, P और Q का, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज सारे ट्रू। इंप्लीकेशन का रूल क्या है, इफ देन का रूल क्या है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स। देखो मैं यहां पर लिखता हूं, ट्रू एंड ट्रू, दोनों भी ट्रू है तो उसका आंसर ट्रू आता है, दोनों भी फॉल्स है ना तो उसका आंसर फॉल्स आता है। अगर ये ट्रू है पहला वाला, दूसरा वाला फॉल्स है तो उसका आंसर फॉल्स आता है। मैंने इस तरह से भी आंसर लिख दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड यू हैव टू कॉपी दिस, बिकॉज चौथे का मेरे पास जगह नहीं है, आई वोंट ड्रॉ इट हियर, मैं इसको रब करके तब लिखूंगा, बट आपको पहले इसको कॉपी करना है। ये देखो इसका नियम मैंने लिख दिया, न्यूमेरिक फॉर्म है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स। आपको ये कॉपी करना है, जल्दी से कॉपी करो।
Okay, Tanish is saying understood. Suzine is saying yes. Shubham is saying yes. Zahida is saying yes. Okay. I hope you have understood. Then please copy this down all the 3 tables. These are very important tables. अब सारा चैप्टर आप ये टेबल के ऊपर पढ़ने वाले हो. Okay, thank you for the likes. अगर आपका कॉपी हो जाएगा तो डन लिखो प्लीज. डन. देन आई कैन ड्रॉ द लास्ट टेबल दैट इज ऑफ डबल इम्प्लीकेशन. All 23 students are back again to attend the lecture. Don't leave the lecture in between. आप भूल जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या सीखा है मैंने. You'll miss the link. Okay, Harsh is saying done. Waiting for others. और किसका हो गया? आदित्य done. Okay, Mr. Junjare is saying done. Neha done. Because I can't rub it unless and until all of you have written this. Tanisha done. Jagruti done. Suzine done. Shubham done. Priyesh done. Pranjal. This is kind of attendance also. I'm taking the attendance. Lecture के last part पे कौन कौन है? Okay, Anjali, Pranjal, Smruti, Sahil, Tanish. Tanish is saying dome. What kind of dome? Neeraj is saying done. Okay, very good. So most of you have done. So I'll rub this and I'll move towards the last, if not the least, connective. Now I'll draw the connective for two tables. एक आएगा P double implies to Q और एक है P and negation of P. इसका बनाना मुझे तो P पहले तो मैं यहाँ लिखूंगा P, यहाँ पर Q, यहाँ पर P double implies to Q. इसको हम बोलते हैं if and only if, या फिर इसे हम कहते हैं double implication. ठीक है, इसका साइन होता है डबल एरो, 2 साइडेड एरो. ठीक है, तो हमको पता है कि हम लोग को P का वैल्यू क्या आता है? ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स. Q का वैल्यू क्या आता है? ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स. अब इसका कंडीशन समझो. एंड का क्या था? दोनों ट्रू तो ट्रू. और का क्या था? दोनों फॉल्स तो फॉल्स. और इम्प्लीकेशन का क्या था? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स. इसका रूल क्या है? if both the truth values are same, got it, then the truth value of P double implies to Q is true. मतलब अगर दोनों भी ट्रू रहेगा या दोनों भी फॉल्स रहेगा. उसने क्या बोला? इफ बोथ द ट्रूथ वैल्यूज, ट्रूथ वैल्यू का मतलब फॉल्स भी होता है ट्रू भी होता है. अगर दोनों का ट्रूथ वैल्यू यानी P और Q का वो सेम आ रहा है तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इंप्लाइज टू Q इज ट्रू. तो यहाँ पर सेम कहां पर है? ट्रू, ट्रू सेम है ना, इसका वैल्यू ट्रू आएगा. और ये अलग है, ये अलग है, ये सेम है वापस. आप बोलोगे तो फॉल्स फॉल्स है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. दोनों ट्रू रहेगा तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू, बाकी सब फॉल्स. समझ में आया क्या बोलता है डबल इंप्लीकेशन? दोनों ट्रू रहेगा तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स रहेगा तो भी फॉल्स. तो इसका मैं यहां पर आसान सा लिख देता हूं. ट्रू डबल इंप्लाइज टू ट्रू गिव्स ट्रूथ. फॉल्स डबल इंप्लाइज टू फॉल्स गिव्स ट्रू. ये याद रखो आप. ठीक है, दोनों ट्रू रहेगा तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू. एक लास्ट का है, दैट इज P का निगेशन.
यहाँ पर सिर्फ मैं एक ही यूज करूंगा P, और यहाँ पर निगेशन P का वैल्यू क्या होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ये बहुत आसान है, फॉल्स का निगेशन गॉट इट। इस तरह से ये दोनों टेबल भी आप कॉपी कर लो, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस 5 tables now. Okay. Yes. Everyone is saying done. They have understood it. I hope that you have understood it. और नहीं समझा रहेगा तो आप मुझे पर्सनली मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे डाउट पूछ सकते हैं. आप फोटो भेजिए जो पार्ट आपको नहीं समझा है. Click a photograph of the part that you have not understood and do send me on my mobile number. That is 8369176716. 8369176716. ओके, उस पे आपको आपके डाउट्स मुझे भेजने हैं, या तो हितेश सर को, या तो निधि मिस को, या तो मुझे, आप किसी को भेज सकते हैं. I'll solve the doubt. So this was the last thing that I'll teach today. Time is up. I have another lecture scheduled in next 10 minutes. So bidding you goodbye, and do send me all the notes that you have copied today. That will confirm your attendance throughout the lecture. Stay safe, stay at home. घर पे रहो, मास्क पहनो. Goodbye. See you all.